अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हम थोड़ा वार्म अप स्टार्ट करते हैं एंड वालेकुम एज सलाम। पीपल जॉइन तो हम वो कर लेंगे, then we'll dive into the full-fledged presentation. So basically I just wanted थोड़ा सा हम वही रूल्स रखें कि हैंड रेस कर लें अगर किसी को कोई सवाल पूछना है या कुछ कंट्रीब्यूट करना है। प्रॉब्ली हम म्यूट कर देंगे, म्यूट ऑल कर देंगे एंड देन वील सेलेक्टिवली अनम्यूट। तो एंड मे बी वी वोंट डू दैट अगर हमें प्रॉब्लम नहीं होता, बट आई थिंक वी कैन गो एज वी आर। एंड अगर फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं जो अनम्यूटेड हैं वगैरह, फिर हम म्यूट ऑल कर देंगे। So for now I think you guys can unmute yourselves when needed, but best यही है कि hand raise कर लें and so the first 5 people, not exactly first 5, and basically anybody who'd like to share what they expect from this presentation. So we're saying creative thinking, lateral thinking. So we're coming here, spending some time. So what do we expect from this? From जो जो मैं expect कर रहा हूँ from the training to क्योंकि I work with many clients, so creative thinking will help me bridge the gap between the client and me, giving solutions to my clients based on the creative thinking principles and solving the problems instead of giving them problems, solving the problems for them. Yeah. Yeah, absolutely. And anybody else who'd like to share what they expect in addition to what Arif said? After teaching in university for last 20 years, I am Dr. Mohammed Shahab Siddiqui, your friend. Now I started my own startup by the name Secret Solutions, and I want to learn the story behind to manage a startup, a new setup, so that I can learn more from your experience. अच्छा, तो वो तो probably will have to थोड़ा सा आज का तो बड़ा focused है towards creative thinking, but yes, we can have that conversation at some point, inshallah. And वो 20 years जो आप फरमा रहे हैं वो that's going to get to 30 years pretty soon. Anybody else would like to share? I'm seeing some people. I can see Sarfraz after a very long time. Sarfraz Amjad, putting you on the spot. अस्सलाम वालेकुम सर। Waalaikumsalam. सर मैं तो ये सेशन ज्वाइन किया था कि चूंकि मेरी जॉब जो है वो एज बिजनेस एनालिस्ट है और हम जो है वो सॉल्यूशंस डिवाइस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम किस तरह से बेहतर सॉल्यूशंस जो है वो डिवाइस कर सकें क्लाइंट्स को और जो हमारे वेंडर्स वगैरह होते हैं। हाँ बिल्कुल। So I'll share my list also, and then people can jump in while we're still in the warm-up stage. So some of the things, most of the time, we struggle against time and budget. So there's never enough money and there's never enough time, right? ये दो usually problems होते हैं जो हम हर वक्त face करते हैं। कार पार्किंग भी मतलब these are typical things जो हम कुछ हम इसमें practice sessions भी करेंगे। ट्रैफिक बहुत है, ठीक है। वर्क के अंदर अगेन
प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, एंड आई नो कि बहुत से लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही से हैं, लेकिन देयर आर अदर एरियाज, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्वालिटी गिर जाती है, तो हाउ टू बैलेंस इट, और मे बी देयर इज अ वे कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और क्वालिटी भी बढ़ाएं टुगेदर. सो एंड देन मोटिवेशन एंड रिटेंशन, राइट, दैट्स आल्सो टफ. एंड regularly, मतलब there are peaks where you can do it, but then sustained करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Hiring, right, again, training, growing the company, growing your team, right. Important versus urgent. तो urgent जब भी आता है, urgent is like, you know, always तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन most of the time urgent wins and important को उतनी अहमियत नहीं मिलती. And then ultimately things जो important अगर हम वक्त पे कर लेते तो वो ultimately फिर वो urgent बन जाती है, right? And then we solve them at a very high cost. तो then minimum viable product हम उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, but again if you are starting a new company, तो आप minimum viable product आपकी क्या होनी चाहिए? Some people say, जैसे Y Combinator वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि if you spend more than 2 weeks building your minimum viable product, you've taken too long, right? And frankly, 2 weeks का minimum viable product is something that's very hard, right? आप बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसी इतनी छोटी चीज कैसे हो जो 2 हफ्ते में बन जाए और फिर हम उसको टेस्ट कर सकें, right? And then regular stress है, fatigue है, there's so many challenges, right? So that's what we're trying to solve. Or trying to figure out ways to solve, right? So, Asad, should we kick in with the regular? हम kick off कर लें. Assalamu alaikum, sir. Mohsin here. I think yes. Let's proceed. I think. Yeah. Right. I think we're 10 minutes into it. Yeah. Yep. And frankly, we had kept 2 hours. I don't think we'll go that far. हम थोड़े से pause कराएंगे, हम करेंगे, but it'll depend on how much you know you guys chime in. उस पे भी थोड़ा सा depend करेगा. It's probably going to be somewhere around 1 hour, 1.5 hour, I would imagine, right? So roughly हम यही चाह रहे हैं कि obviously this is a teaser program. जो creative thinking का course है, that's a longer course. इसमें हम एक थोड़ा सा एक flavor ले लेंगे कि अच्छा, you know, how can it help me? Does it have value, right? And then if it has more value, then we can go into longer sessions, deeper sessions separately. ठीक है? This brings us to Get Professional, who's arranged this course. So I'll hand it over to Asad. Asad, आप screen share भी चाहेंगे या आप ऐसे ही talk us through? बिल्कुल सर, मैं screen share करना चाह रहा हूँ. Sure. Let me give you the screen then. Probably need. So can you share the screen? Sir, I am disabled. अच्छा, तो आपको अच्छा somehow I'll have to hand it over. Try now, Asad. जी. स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? जी जी. Yes. ओके. तो अस्सलाम वालेकुम ऑल. मैं गेट प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, असद कुरैशी, और जो मेरी जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है. मैं बता दूं आप लोगों को, जो गेट प्रोफेशनल है वो एक कंपनी है जो कि ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी करवाती है. हम लोग फोकस हैं पूरी पाकिस्तान में जितनी भी फर्म हैं, जितनी भी जिस तरह की भी इंडस्ट्रीज है उनको लेकर. मोस्ट जो हमारी जो एक्सपर्टी है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है. हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं. आप ये देख रहे हैं हमारे पार्टनर्स और डायरेक्टर्स हैं दोनों. ये दोनों डिजिटल डिविडेंड और अजालो सॉफ्ट के जो है दोनों सीटीओ हैं, और इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर. उसके अलावा
हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग स्क्योर ट्रेनिंग, ये मेन ट्रेनिंग हमने पब्लिकली अनाउंस करी थी, जो कि जिसमें लोग मल्टीपल कंपनी से और वो जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट होते हैं वो लोग आते हैं। उसके अलावा हम यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, यानी कि कोई भी कंपनी है उनको कस्टमाइज ट्रेनिंग की नीड है उनके स्टाफ के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो चाहते हैं कोई वो लोग उनका खुद डिज़ाइन हो, तो हम उनके लिए भी डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास ट्रेनर्स हैं और वो जो ट्रेनिंग है कोई भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, क्वालिटी कंट्रोल की, पर्सनल डेवलपमेंट की, स्किल मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, स्क्रम एंड एजाइल की, तो हम ये वाली ट्रेनिंग भी करवाते हैं। उसके अलावा आपको हमारी जो जो ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पर अगर आप हमारी वेबसाइट देखें तो ये वो ट्रेनिंग्स हैं जो अब तक हम करवा चुके हैं। ये सब ट्रेनिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारी जो रिलेटेड हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, और इसके अलावा भी कुछ हैं। जैसे कि अभी हमारा जो मंथ गुजरा है उसमें हमने HBL बैंक और जो बाइक या टेक्नोलॉजीज है उनको हमने ट्रेनिंग करवाई है, और वो अंसार मोहम्मद की ही ट्रेनिंग थी, और वो ट्रेनिंग भी स्क्रम एंड अजाइल एंड स्क्रम की थी। और तो क्लाइंट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं कि हमारे पास सी स्क्वायर है, CDC है, अवेंजा है, अजाइल सॉफ्ट है, उस्मान इंस्टीट्यूट हमारा पार्टनर है, उसके अलावा माजू हमारा पार्टनर है, DD हमारे क्लाइंट है, ज़ाइनोटेक, एफिटेक, US8 और द गिटनी सेंटर, ये सब हमारे क्लाइंट हैं जिनको अब तक हम ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं, और दे आर वेरी हैप्पी क्लाइंट ऑफ गेट प्रोफेशनल। तो उसके अलावा जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे अगर वो लोग चाहते हैं कि उनकी कंपनी में या उनके इदारे में नीड है किसी भी तरह की कस्टमाइज ट्रेनिंग की, या कोई आजकल जो रिक्वायरमेंट है कोई भी डिजिटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जो मैंने ईमेल दी है, जो मैं ईमेल की है उसमें मेरा कॉन्टेक्ट्स है, मेरी ईमेल है, तो उसके लिए हम जो है ना बेस्ट और सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। That's all from my side, and sir, thank you. Thank you. So let me share again. Okay. Asad, can you see my screen? Yes. Okay. So back to our session. हम creative thinking में आज जो है, we just want to cover a bit of creative thinking and lateral thinking, and after that हम थोड़ी सी exercise भी कर लेंगे. उसके फौरन बाद जो है हम थोड़ा सा 6 thinking hats cover करेंगे, and उसकी भी exercise करेंगे, and these are tools enough to get you going, and you can start practicing these things. And then जो deeper topics है जो हो सकता है हम थोड़ा बहुत टच करें लेकिन उसकी deep dive नहीं कर सकेंगे, which is the systems thinking and counterintuitive thinking. These are things that that's probably designed for a longer session. A bit about me. I've been building software for a very long time, and been in different roles within the software. Creative thinking and 6 thinking hats. इसके हवाले से I've been lucky in terms of getting opportunities to train C-level executives also on these things. So I've done training at every level, junior and mid-level, and then senior, and very senior also. So उसमें हम we've seen the benefits. Again, जितनी practice करते हैं उतना benefit बढ़ जाता है, but that's the idea. कि we have as many, we look for as many opportunities as possible. So Edward de Bono is somebody who's written 70 books, 70 books on creative thinking, lateral thinking, and इसकी जितनी variations आप सोच सकते हैं, right? And
70 books that they have been translated into about 40 languages. So he is extremely popular. और हम बहुत सी चीजें जो आज डिस्कस करेंगे हमने एडवर्ड डी बोनो से ही बोरो की हैं. And he is and he's a medical doctor, so he's Dr. Edward de Bono, but he's been called to solve problems, engineering problems, all kinds of problems, government regulatory problems, because of his skill of he had developed his creative thinking skill to an extent where he could solve very hard problems. So he was invited like that. And so just to get you guys thinking a bit, here's a small problem to solve. So there are 3 glasses that to be filled. So you are only allowed to move 1 glass. So we want के full and empty glasses alternate करें. इस वक्त 3 glasses left एक तरफ हैं और जो 3 glasses जो भरे हुए हैं और जो खाली हैं वो एक तरफ हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि हम alternate कर दें, एक भरा हुआ glass हो, एक empty हो, एक भरा हुआ, एक empty हो. But we are only allowed to move 1 glass. We can only do that by moving 1 glass. तो अच्छा असद, because मैं screen share कर रहा हूँ तो I'll need your help. मुझे वो दिखता नहीं है. Hand raise जो भी करें ना उनको फिर unmute कर दें. जी So they can answer. So anybody who's, and I'm sure some of you have already seen this problem. So somebody who just figured it out now, yeah, wants to share, please raise your hand. Okay, Kamal Mushtaq has raised his hand. Assalamu alaikum. So we can swipe 2 glasses, right? In order to make them. We can. हाँ, नहीं वो तो नहीं कर सकते क्योंकि वो we are allowed to move only 1 glass. तो अगर swap करेंगे ना तो 2 glasses touch हो जाएंगे. जो हम नहीं कर सकते. Good, but still very brave of you to try. Anybody else? राबिस नकवी ने हैंड रेस किया था पर वो दोबारा से हमने मेरे ख्याल में फिर शायद अगर राबिस, I think everybody is thinking about to swapping. Yeah, I was thinking about that. अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. Because again आप लोगों के इतना वो at this moment इतनी practice नहीं है. In fact it's swapping, but you just pour it into the next one. Yeah. हाँ, okay. इसमें so there's a slight variation, right? हम थोड़ा सा ये करते हैं कि हम थोड़े से assumptions जो हैं we feel कि we can't do some things जबकि we can, so we can raise 1 glass and put it back. तो हम sort of अपने आप को constrain कर लेते हैं. Right, so अच्छा please can you guys mute? We'll just move on. So what is again creative thinking, lateral thinking? ये है क्या? Basically, जैसे अभी हम we'll revisit some things, will repeat themselves. For example, you're searching for alternatives, right? अभी हम वो glass swapping वाली चीज में देख रहे थे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं. And उसके अंदर again you have to challenge your assumptions. And then कभी-कभी आप कहते हैं कि अच्छा जी search for, एक और भी चीज है जैसे कि search for alternatives में एक ये भी चीज आ जाती है कि some of you might have experienced, मेरे साथ तो कई दफा हुआ है कि मैं एक रूट से ऑफिस जाता हूँ and then on a particular day
वो रूट किसी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी या कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी और मुझे डिटोर लेना पड़ा, एक और रूट लेना पड़ा। एंड देन आई रियलाइज दैट जो डिटोर था वो एक्चुअल रूट से बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब समटाइम्स बहुत ज्यादा अच्छा, you know, less traffic, faster, what, all the good things. So search for alternatives. So हम basically जो हम इस ट्रेनिंग में हम जो सीखना चाह रहे हैं ये है कि how do we make a habit out of this and how do we make a science out of this, कि you know, challenge yourself, alternate routes वाला। and alternate routes में का फायदा एक दफा इस तरह से होता है कि एक दफा I had to come from Malir Cant to Mohammed Ali Society, and Share Faisal was blocked, University Road was blocked, there was some strike or something. But because मेरी अब आदत हो गई है alternate route strike करने की, मुझे इतनी गलियों के रास्ते पता थे कि मैं पहुंच गया, जो कि वाकई मतलब खुद भी नहीं लग रहा था हम पहुंच पाएंगे, because वो इतना, and there was a need to get there, my family was with me, so थोड़ा सा stressful वक्त था, लेकिन because there was alternatives practice करते रहते थे तो हमें रास्ते मिल गए सारे। So again आप पैटर्न से हट जाते हैं, you try to change things, प्लस हम ये भी कोशिश करते हैं कि a lot of times अगर मुझे point A से point B में जाना है तो our brain tells us that you know the fastest way is, you know, as the crow flies, कि आप सीधा सीधा A से चलें और B तक पहुंच जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप पैदल एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन जा रहे हैं तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है। लेकिन life is complex, right? तो उसमें there are many obstructions in it, and you want basically to so sometimes you have to move away from the destination to actually get there. For example, अगर आप मस्कन से मोहम्मद अली सोसाइटी आना चाह रहे हैं तो maybe you're better off going to Sorab Goat, getting on the Leari Express and then coming, which would be much faster during traffic hours, right, than to come directly from your university road. तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये हमारा जो फर्स्ट आइडिया आता है ये एक हैबिट हो जाती है, और ये एक मेंटल लेथार्जी है, जैसे एक सुस्ती आ जाती है ना फिजिकल बॉडी में, इस तरह से मेंटली भी हम सुस्त हो जाते हैं, हम सोचना नहीं चाहते हो, इट हर्ट्स टू थिंक कहते हैं ना तो उसकी हम बेसिकली वो पैटर्न्स तोड़ देते हैं। एंड प्लस देयर इज अ सम ऑफ थिंग्स, जैसे lateral thinking बहुत इसलिए पसंद है because it helps me relax, because a lot of times there are many constraints coming in and it's very stressful, but once you realize here there is always a way। जैसे हम जब TRG में थे और Zia Chishti is a very big name, he's the head of the company, he lives in the US, तो Zia is a genius माशाल्लाह। and तो हम लोग एक मीटिंग में, हम तो नहीं थे, मेरे कॉलीग एक मीटिंग में था, एंड एवरीबॉडी ही हैड एन आइडिया एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एंड देन ही जस्ट वेरी सॉफ्टली सेड, ही सेड कोई तो कर रहा होगा, and then he himself has solved so many problems, right? People who've we've seen so many brilliant ideas, right, that work. So it's an attitude of mind. It's basically you have to every time you want to say कि ये नहीं हो सकता, you need to stop and ask yourself कोई तो कर रहा होगा you know, so again low probability thinking। तो हम अभी थोड़ा सा फैक्ट्री का देखेंगे। एयरप्लेन्स का हम देखते हैं कि जैसे एडवर्ड डी बोनो को बुलाया गया, एक जमाना था कि एरोप्लेन्स बहुत क्रैश करते थे, दिस इज द 70s, कि एरोप्लेन जब लैंड करने आते थे तो अगर लैटरल विंड है, साइडवेज बहुत तेज हवा चल रही है, तो एयरप्लेन को एक डिसीजन लेना पड़ता था कि मैं इसमें लैंड करने की कोशिश करूं कि क्रैश होने का डर है, या मैं टेक ऑफ कर लूं और एक सेकंड राउंड में आऊं कि अगर उस वक्त बहुत तेज हवा चल रही है तो थोड़ी देर बाद आ जाऊं। लेकिन वो डिसीजन, ये 70s की बात है, अभी तो कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो जब वो लैंड करने आते थे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता था कि
जब वो अगर पुल आउट करने की कोशिश करते थे तो इतना ज्यादा ग्रेविटी का प्रेशर और उसका अपना प्लेन का थ्रस्ट मोमेंटम इतना होता था कि वो दे कुड नॉट अबॉर्ट दैट लैंडिंग, दे कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, एंड अगर वो करते थे तो क्रैश हो जाता था, और अगर वो नहीं करते थे तो भी क्रैश हो जाता था, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। तो एडवर्ड डे बोनो को बुलाया गया, एंड ही इज एन मेडिकल डॉक्टर, ही इज नॉट एन इंजीनियर। तो सब इंजीनियर्स दे कुडंट सॉल्व इट, तो एडवर्ड बोनो बुलाया। तो एडवर्ड बोनो ने एक टेक्निक हम आगे जाके देखेंगे, इट्स कॉल्ड रिवर्सल। तो ही यूज्ड अ रिवर्सल टेक्निक, ही सेड कि द प्लेन शुड लैंड अपसाइड डाउन। नाउ दैट्स अ क्रेजी आइडिया, व्हाई शुड प्लेन्स लैंड अपसाइड डाउन? So he used that idea to generate more ideas, and he said that आपने देखा होगा अगर कि जब प्लेन लैंड करने जा रहे थे तो आपने फ्लैप्स देखे होंगे, दोनों तरफ खुलते हैं, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। so some of those flaps are basically to help the plane land or go down, and there are other flaps that actually are lifting the plane. So what Edward de Bono was basically saying, or what through his reversal technique what he was able to teach was that जब प्लेन लैंड करने आए तो आप फ्लैप्स ऐसे खोल लें कि वो अपवर्ड थ्रस्ट भी आ जाए, तो अगर अबॉर्ट करनी हो लैंडिंग तो देयर इज एन एग्जिस्टिंग अपवर्ड थ्रस्ट जो एकदम से उसको लिफ्ट कर ले। So that was applied in all aeroplanes, and even today they use them and saved so many lives, right? And ये ऐसा प्रॉब्लम था जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था, right? And this is the factory problem. This is also another big problem that Edward de Bono solved. This is about जैसे आपने देखा होगा कि रिवर होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि रिवर के साथ ही फैक्ट्रीज बनी होती हैं, so that बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग में पानी बहुत चाहिए होता है, बट वो पानी जब आप यूज करते हैं तो वो खराब हो जाता है, वो बेसिकली पोल्यूट हो जाता है, बिकॉज आप उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं या अपने केमिकल प्रोसेस में यूज करते हैं, एंड देन उसका स्टैंडर्ड लेजिस्लेशन होती है, लॉ होता है कि आपने उसको साफ करना है, फिर वापस आपने उसको रिवर के अंदर वापस डंप करना है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसा नहीं करती। व्हाट दे डू इज कि जैसे इसने पानी इनटेक किया, if you can see my mouse, तो यहाँ से रिवर बह रही है, तो इसने पानी लिया एंड देन इसने पानी वापस रखा, जब ये वापस डाला तो फिर इसने यूज किया और फिर इसने डाला, फिर नीचे और रिवर फैक्ट्रीज हैं। तो होता है कि अगर ये साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा तो ये जो पानी से डंप किया तो ये रिवर खराब हो जाता है, रिवर में पानी खराब हो जाता है, गंदा पानी। और जब F2 जो सेकंड फैक्ट्री है, ये जब उस पानी को यूज करेगी तो वो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो एंड देन डाउन द रोड जो फैक्ट्री 5 है या फैक्ट्री 10 है, उसको तो बहुत ही गंदा पानी मिल रहा है, एंड देन अगर ह्यूमंस यूज कर रहे हैं वो पानी आगे जाके तो और भी डेंजरस है। तो इसको सॉल्व करना था। तो आई वो अभी हम आगे कुछ पोस्ट कराएंगे, अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा इसका सोल्यूशन, लेकिन इसमें भी अगेन this is an engineering problem, or yeah, it's a government problem, and they couldn't solve it. They asked Edward de Bono, and Edward de Bono again used his reversal technique to say that the river should flow upstream. So river always goes downstream. मतलब stream है तो it goes in one direction, downstream जाती है with gravity, right? तो उसने कहा कि जी आप it should flow upstream. तो वो upstream कैसे करेंगे आप? तो अपस्ट्रीम करने का तरीका ये होगा कि उसने रिवर्सल टेक्निक लगा दी, लेकिन फिर उन्होंने उसको सोचा। जब उन्होंने बहुत सोचा तो दे केम अप विद दिस। So basically they just reverse the arrows. If you look at the arrows, यहाँ पहले पानी लेते हैं और फिर उसको डंप करते हैं, और नेक्स्ट में पहले आप जो लेते हैं नीचे से लेते हैं, डाउनस्ट्रीम पानी लेते हैं और अपस्ट्रीम डंप करते हैं। So as you can imagine, every factory is legislated, and this is easy to implement in the sense from a government perspective. They can do audits and they can very quickly catch कि कौन सी factory follow नहीं कर रही है, and then put heavy penalties, right? So you take water downstream and dump it upstream. इसका फायदा ये होता है कि जो फैक्ट्री है
basically it becomes its first user. तो अगर वो पानी साफ नहीं कर रही तो वो जब उसी को नुकसान होगा, सबसे पहले नुकसान उसको होगा. You take water downstream and then dump it upstream. So everybody has to follow. So this became so successful that to my knowledge ये कुछ 30 countries में legislation apply की गई है. इतना practical था कि 30 countries में apply की. I'll give you a moment to read this. So जैसे रिवर्सल की हमने बात की थी, नो वर्सेस पो, तो हम पहले यूजुअली क्या होता है कि हमसे कोई कहता है कि जी ये करना है और आप कहते हैं ये नहीं हो सकता, राइट, and you say no. So no versus pro is provocation. So if you tell somebody that planes should land upside down, or you tell somebody that river should go upstream, right, तो वो it's a provocation. सामने वाला upset भी हो सकता है, यार कैसी बातें कर रहे हो, right? So but the idea is, if people understand that this is a technique from lateral thinking, so they will understand what's happening. So again, it's just a way of getting you out of pattern. So आपका एक जो thinking pattern है उसको तोड़ रहे हैं आप. Okay, abhi hum very quickly, this is the hopefully the last slide before some exercise, so just bear with me. So escape method. So again, now hum 5 formal methods padhne wale hain, how to get out of, break your pattern, right? And the escape method, think of something that we have take for granted and negate it. For example, restaurants do not have food. या shoes do not have soles, right? तो आप कोई problem solve कर रहे हैं, so you basically think of something that you take for granted and you just negate it, right? Reversal is something we talked about. I'll give you a moment to read. So इसमें आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो you can differentiate कि अच्छा escape क्या है. अगर आप second वाले point को देखें, I do not have orange juice for breakfast. But reversal क्या है? The orange juice has me for breakfast, right? So थोड़ा सा flavor का फर्क है. Again, we don't need to really. मैंने तो देखा है कि अभी हम देखेंगे 5 टेक्निक्स, इनमें से हम एक को भी अच्छी पकड़ लेना तो suddenly you can think really differently from other people. So exaggeration, I'll give you a moment to read. So exaggeration is, again, you're saying every household has 100 phones, right? So you're trying to break the pattern, trying to come up with a new solution. Distortion. Take normal arrangements, for example, relationships or time sequences, and switch them around. For example, you close the letter after you post it. So again, it's very close. You can see कि अच्छा ये escape से भी मिल रहा है, ये reversal से भी मिल रहा है.
बट थोड़ा सा आपने डिस्टॉर्ट किया. You close the letter after you post it, or criminals pay for the police force, और food prepares customers for chefs. ठीक है. सो अब इसके अंदर अभी एक और पॉइंट रहता है, बट मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कैलिफोर्निया में हमने सुना है कि ये तो हमें पता है कि कैलिफोर्निया में फाइन्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब छोटे छोटे उस पे ट्रैफिक वायलेशन से 200-300-250 फाइन हो जाता है. जो हमने सुना है, विच इज अ फनी थिंग, कि कैलिफोर्निया में 75% ऑफ द आई थिंक पुलिस का है या ओवरऑल गवर्नमेंट का है कि उसका जो कॉस्ट है वो ट्रैफिक वायलेशन से वो कवर करते हैं. एंड कैलिफोर्निया इज वेरी रिच, तो यू कैन पीपल हैव वेरी पावरफुल कार्स, राइट? So they like to drive them fast, and they don't have the autobahn like German German people, right? तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप तेज चलाएं और कोई चालान नहीं होगा, तो वहां हर बात पे चालान हो जाता है. तो वो अब 75% गवर्नमेंट उससे चल रही है. तो ये वाली चीज आ जाती है डिस्टॉर्शन वाली, कि क्रिमिनल्स पे फॉर द पुलिस फोर्स. ओके, एंड दिस इज द लास्ट वन. So again, wishful thinking is something something जो आप कहते हैं कि यार अच्छा, this is something completely different. So अभी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे. At this point, in fact, I would recommend के ये थोड़ा सा आप इसको नोट भी कर लें. So I don't think we'll be sharing the slides, but I think I would say that just take out your phone and take a picture of this slide, because ये आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी for the next exercise. So just give you a minute to take a picture. Okay, moving on. So अभी क्योंकि हम अभी इतने वो नहीं है, अभी हम पहली एक इजियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी मैं आई शेयर दिस, बल्कि असद, आई थिंक इफ यू कैन प्लीज शेयर दिस लिंक. Just share this link with the group in the chat. सॉरी सर, क्या ये वाला जो लिंक है मेरे हाँ, पास गूगल डॉक के हैं, गूगल फॉर्म्स के हैं, हाँ, क्या ये वाला नहीं लिंक नहीं, आप मैंने शेयर? आपको ईमेल किया था. ईमेल किया था. if you can't dig it out, then I will share it, because हाँ, इसमें embedded तो है ये, लेकिन मेरे लिए जरा क्लंकी होगा. सो अगेन, उसमें ये सारे नहीं हैं जो आपको अभी ये लिंक शेयर किया जा रहा है. इसमें प्लीज जाके ना, ऑल यू हैव टू डू इज, उसमें सेलेक्टेड है, उसमें सिर्फ शायद 5 या 6 हैं, उनको जाके आप मैच कर दें कि एस्केप है या एग्जैजरेशन है या रिवर्सल है या डिस्टॉर्शन है या विजुअल थिंकिंग है. यू जस्ट ट्राई एंड मैच देम, एंड इसमें कोई सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चीज है. while the link is being shared, you can start thinking about it कि जिस तरह अभी हम अगर हाइंडसाइट में देखें तो ये सारी इन्वेंशंस हैं बेसिकली, जो आपको आप स्क्रीन पे दिख रही हैं, राइट? देयर ऑल वेरिएशंस एंड इन्वेंशंस. एट सम पॉइंट दे वर एन इन्वेंशन and now we take them for granted, right? So we can use these techniques to get to a situation or get to a state where something that has not been invented, we can invent that. The link is shared in the chat. Thank you. So I'll go to analyze once we have completed it.
Let me just stop sharing for a minute. And आप लोगों को पोल एक्सेस कर लिया आप लोगों ने? Yep. I can see that people are thinking a lot. So the first one has about 25 responses. So a lot of people have gone in, and we have 33 participants. So a lot of people have gone in and done the poll. लेकिन पहले सवाल पे अटक गए, आगे नहीं बढ़े. So I think you're overthinking. This is just a practice. You don't have to be right. Okay, just go through the poll quickly, and inshallah then we'll share some of the results. And इसमें कोई वो नहीं है. Okay, let me share my screen. Okay, refresh this. So thank you. आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया. Okay. So thank you for paying attention because पहले दो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि there are examples of reversal, right? So most people said that yes, factory was a reversal because it said river should flow upstream and then plane should land upside down, right? So their reversal. अगर हम ये कहते हैं ना कि plane should not land, right? Everybody should just go up and then parachute out and then plane can crash, right? वो escape हो जाता, right? But that's an idea to think about. कि आप कहते हैं कि plane should not land at all. जब एक दफा आप उड़ गए और आप अपनी destination पे पहुंच गए, everybody parachutes out of the plane, right? And then the plane can go and crash. So that's also an escape method. What it will allow us to do is to come up with other ideas to solve the problem. मतलब हम अपना pattern तोड़ रहे हैं, right? That's all we're trying to do. कि हम अपना thinking pattern जिसमें हम फंस गए हैं वो तोड़ रहे हैं. Again, reversal, the plane or factory में दोनों में reversal है. Then other people feel कि वो exaggeration है, which is fine. You can
आप अपना बना लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपना बना लेंगे, राइट? एंड देन रिमोट वर्क, राइट? सम पीपल सेड विजुअल थिंकिंग, एग्जैजरेशन, एस्केप, राइट? सो एस्केप इस तरह से कह सकते हैं कि भाई आप कहते हैं कि गो टू द वर्क rather than आप saying that कि don't go to the work, don't go to the office, right? So that's a complete zero. जहाँ zero आ गया कि आप बिल्कुल आप कह रहे हैं हम करेंगे ही नहीं, तो वहां फिर वो escape आ जाता है, तो that's remote because you're not going to the office at all, right? अच्छा, और विजुअल थिंकिंग उस तरह से बन सकता है कि भाई आप, ये थोड़ा सा ओवरलैप भी करेगा कि आई वुड सी फील कि विजुअल थिंकिंग इस तरह से बन जाएगा कि आप कहते हैं कि भाई, आप कहते हैं कि यार व्हाट इफ वी डिडंट हैव टू गो टू वर्क एट ऑल, राइट? ये थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स जस्ट टू ब्रेक आवर पैटर्न. फेक एलिवेटर, सो फेक एलिवेटर क्लोज बटन आप लोगों को शायद ना पता हो, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, distortion, and very nice, a lot of people has called distortion, so I love it. आप लोग शायद ना पता हो कि यूएस के अंदर बाय लॉ जितनी एलिवेटर्स बनती हैं उनका जो क्लोज का बटन होता है, कि हम कहते हैं ना, हम जाते हैं और हम फौरन क्लोज दबाना शुरू कर देते हैं और बेचारे जो दूसरा आ रहा होता है उसके ऊपर दरवाजा बंद हो जाता है, तो क्लोज का बटन, अमेरिका में क्लोज का बटन लीगली अलाउड नहीं है टू वर्क. इट ओनली हैज टू बी अ लाइट बल्ब. सो आई थिंक पाकिस्तान में तो शायद बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वी आर सो इम्पेशेंट, राइट? हम फौरन हॉर्न बजाते हैं, हम हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करते हैं. तो यूएस के अंदर आप अगर एलिवेटर में जाएं और आप क्लोज का बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी और ऐसा लगेगा हाँ कुछ कर रहा है वो, लेकिन होगा कुछ भी नहीं. इट इज जस्ट अ फेक बटन, ओके? एंड दिस इज बाय लॉ. ओके, सब्स्टिट्यूट फील्डर. अब ये है कि भाई चोट लगी तो क्या करेंगे? किसी ने तो सॉल्व किया था ये प्रॉब्लम, राइट? किसी एक पॉइंट पे. अब तो हम कहते हैं यार सब्स्टिट्यूट टीचर ले आओ, सब्स्टिट्यूट फील्डर ले आओ, बैकअप्स क्रिएट कर लो, लेकिन जब इनिशियली प्रॉब्लम आया होगा तो आई लाइक विजुअल थिंकिंग लोगों ने ज्यादा सेलेक्ट किया है, मैं भी थोड़ा सा आई एम टुवर्ड्स दैट. एंड दिस कुछ चीजें हैं, वी नो दैट देयर कोई परफेक्ट आंसर नहीं है. व्हाट हर्ट्स, डू इट मोर ऑफन. अच्छा, व्हाट हर्ट्स, डू इट मोर ऑफन एजाइल वाले बहुत पसंद करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जी मैनुअल टेस्टिंग बहुत ज्यादा तकलीफ दे चीज है, तो कहते हैं ठीक है डू इट मोर ऑफन. अब उन्होंने कहा अच्छा मोर ऑफन करेंगे तो फिर ऑटोमेट कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑटोमेट कर लें. फिर उन्होंने कहा कि जी मैनुअल डिप्लॉयमेंट्स आर वेरी हार्ड, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स आर वेरी हार्ड, बहुत सारे मसले आते हैं, वीकेंड लगता है, रात लगती है, तो उन्होंने कहा ठीक है डू इट मोर ऑफन. कंटिन्यूस डिलीवरी ले आए कि भाई आप दिन में 10 दफा कर लें, ठीक है? और अगर बहुत अच्छे हैं तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर लें, विच इज प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट. आप 10 दफा कर लें, 50 दफा कर लें दिन में. So basically do it more often. What hurts, do it more often, and then once you've decided, then you keep solving it for different, right? So this concludes that exercise. Thank you for participating. I like this simple. A simple substitute might change a habit. थोड़ा सा इसको give you a moment to read this. So those people who are dieting, उनके लिए बहुत अच्छा है कि भूख लग रही है तो वैसे तो वी नो कि पानी पी लें तो थोड़ी सी भूख कम हो जाती है, लेकिन गो ब्रश योर टीथ तो जरा फ्रेशन अप हो जाते हैं ना. तो अगर बहुत नींद आ रही है तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लें. So again, these are just techniques, different things to help you with your day to day. In fact, instead of an angry email, make a phone call. Make a phone call से भी बेहतर पहले ये होगा कि जाके थोड़ा ठंडा पानी पी लें and then make a phone call. जी Sabine. Sabine has raised her hand. We'll have to unmute Asad, or I think Sabine can unmute herself also.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी आपने एक बात कही कि कभी कभी कोई चीज़ हमें बहुत हर्ट करती है तो हम उसको दोहराएं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है या फिर कोई अपने हो या दोस्त हो, कुछ भी हो, तो उस चीज़ को दोहराने से तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादा हर्ट होंगे और वीक होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इस पेन से या इस हर्ट से किस तरह से बचा जाए, या ये चीज हर्ट ना हो, मतलब हम इसको क्या करें ऐसी चीज, क्योंकि वो तो रुक नहीं, लोग रुकते नहीं है ना, आप हर्ट होते रहते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप अपने आप को हर्ट होने से बचा सकें या वीक होने से बच सकें? हाँ नहीं नहीं इसका मेरे पास दिस इज अ टफ वन, बट एक दो चीजें थी जैसे I don't think it'll solve your problem, but I'll just share that. Long time ago, हम एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे थे एंड हम उन्हीं की साइट पे बैठे हुए थे। तो एंड लाइक ऑलवेज वी वर लेट, हमने बहुत एग्रेसिव एस्टिमेट दिया हुआ था, तो वी वर बिहाइंड। एंड उनकी मतलब रोड्स के ऊपर जो है ना, उन्होंने बड़े बड़े वो बैनर जमाने में अलाउड होते थे, तो उनके वो प्रोडक्ट के लॉन्च के बैनर्स लगे हुए थे एंड वी वर बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर सिटिंग इन देयर ऑफिस एंड वी वर नॉट रेडी। तो उनके जो लोग थे, दे वर जो उनके अपने एम्प्लॉयज थे जो हमारे साथ क्लोजली काम कर रहे थे टेस्टिंग में वगैरह, दे वर गेटिंग वेरी अपसेट एंड दैट्स फाइन। उनमें एक साहब थे जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, और वो हम लोग साथ बैठते तो काफी हमें डिप्रेस करते रहते थे बातें करके। तो एक दिन उन्होंने एक और ऐसी कटिंग रिमार्क दिया, तो मैं उनके पास चला गया, मैं उनके पेपर लेके गया, पेपर पेंसिल पे मैंने कहा कि यार ये आप बात तो कह रहे हैं, और उन्होंने मतलब इट वाज नॉट वन लाइनर, इट वाज लाइक अ स्टेटमेंट, राइट? तो ऐसे कि यार आप यू वेरी ब्रेव एंड आप हमें ये कहते रहते हैं चीजें, व्हाई डोंट यू राइट इट एंड साइन इट, राइट? यू राइट इट एंड साइन इट, जो आप हमें बातें कह रहे हैं, and you're a very brave person, so why don't you write it and sign it, so I'll show it to your bosses also and get their opinion. वो दिन था, और उसके बाद जितना अरसे वो प्रोजेक्ट रहा वो खामोश रहे। ठीक है। So sometimes it's good to create some evidence, but anyway, I don't think that's exactly your solution to your problem, but जब आप ये practice कर लेंगे ना patterns तोड़ना, तो then you will come up with more of these ideas, right? सॉरी सर, पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं चैट में Okay, भी। प्लीज, हाँ प्लीज आप पूछे। असद आप ही उनको रिपीट कर लें। ओके सर। सर मोहम्मद शहाब is asking, should we study psychology more for creating alternate thinking? अच्छा, शहाब ने हाथ भी रेस किया, लेकिन शहाब I'll just I'll let असद run us, because हम थोड़ा सा टाइम, मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी खत्म, we are almost touching an hour, तो we'll just run through this. अच्छा, for the rest of you guys, if the question interests you, you can pay attention to that question. If it doesn't, try and come up with a solution for car parking problem in your office or house. Find first use standard brainstorming and then apply lateral thinking techniques. ठीक है? So I will share some, तो I would request कि पेपर एंड पेंसिल ले लें या अपने पास कहीं नोट करना शुरू कर दें कि अगर कार पार्किंग का प्रॉब्लम है आपके घर के पास या ऑफिस के पास और बहुत सारी गाड़ियां, how will you solve that? What are the alternate options, right? अपने पास डिस्क करना स्टार्ट करें। I will make it difficult for you. What I will do is lateral thinking में जो होता है वो ये होता है कि आप कॉमन सेंस पहले अप्लाई कर देते हैं, जितने आप 3-4 लोगों जमा कर लेते हैं और आप उनसे सारे आइडियाज ले लेते हैं पहले, यू लिस्ट देम। जब आप कहते हैं कि यार हम आधा घंटा 1 घंटा आप लगा चुके हैं एंड नाउ यू आर सेइंग वी कांट कम अप विद अ बेटर आइडिया, उस वक्त फिर आप लैटरल लगाते हैं। लैटरल इज बेसिकली टू ब्रेक योर पैटर्न एंड कम अप विद नेक्स्ट लेवल आइडियाज, राइट? लैटरल विल नॉट हेल्प यू अगर आपने इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की है। ओके, so do the initial brainstorming in parallel while I try to answer these questions, and then we'll come to lateral thinking. Okay, so back to you, Asad. आप प्लीज रिपीट कर देते हैं सवाल। असद, आपकी आवाज नहीं आ रही। Really sorry, sir. Sir, Mohammed Shahab is asking, should we study psychology more for creating alternate thinking?
I would say कि psychology from agile and scrum and project management, तो वो psychology study तो करनी पड़ेगी, लेकिन for lateral thinking I would say कि एडवर्ड डिबोनो की 70 बुक्स हैं, लकीली लिबर्टी में लिबर्टी बुक स्टोर में बहुत सी आपको बुक्स मिल जाती, बहुत सी 70 तो नहीं मिलेंगी, 2-3 मिल जाएंगी आपको, या 3-4 मिल जाएंगी. Start with in his books, तो उसमें से just pick one book and then rather than reading a lot of books, just practice more. एक बुक ले लें और उसको प्रैक्टिस कर लें. और नेक्स्ट असन. सर उसके अलावा सभी का क्वेश्चन हो गया. और सर मोहम्मद शहाब सैयद ने हैंड रेस किया था, पर अब मैंने दोबारा लो कर लिया. हाँ, वो मैंने रिक्वेस्ट. नो क्वेश्चन. ठीक है. So we'll move on to this, some examples. Okay, so ये मैंने पेपर आउट कर दिया है. अगर आपने ये चीजें लिखी थी तो we are saying okay, ये तो this is not lateral thinking. Okay, this is something आप 4 लोग बैठ जाएं चाय पे ऑफिस के अंदर, आप ये लिस्ट 12 चीजों की लिस्ट तो आप वैसे ही ले आओगे. करेक्ट. अब हम इस पे लैटरल लगाएंगे. ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. पार्क इनसाइड नेबर्स हाउस. सो लेट्स से हमारा इफ योर ऑफिस इज नियर a residential area and there are like, so when I mention this park inside neighbor's house, तो लोग हंसते हैं कि अरे नेबर पहली खफा हो रहे हैं कि हमारे घर के बाहर आप गाड़ियां नहीं खड़ी करें, हम अंदर खड़ी करने की बात करें. बट आई विल टेल यू, इन रियल लाइफ हमारे घर पे हमारे नेबर एक दफा आ गए थे और उन्होंने हमसे इजाजत ली, उन्होंने मांगी है. दे वर वेरी ऑनेस्ट विद अस. अनफॉर्चुनेटली हम we could not find that bigness of heart कि हम उनको अलाउ कर दें, लेकिन it's happened to us. They've come and asked कि can we park our car inside your house? so it's not that far fetched. ठीक है ना. पार्क आउटसाइड नेबर्स हाउस. ठीक है, अगर नेबर से दोस्ती हो गई है तो आप कर सकते हैं, उनको खाना वाना खिला दें या रेंट दे दें. करीम बाइक यूज कर लें. राइट. गाड़ी ना लाएं, बाइक ले आएं, तो बाइक की यूजुअली ऑफिस के अंदर जगह बन जाती है. This I used to do, use driver to get a drop, so no need to park. So there was once I was working at a place जहाँ parking was a challenge, या मुझे थोड़ा सा uncomfortable लग रहा था to park outside, तो I just used to take a drop. ठीक है, that's expensive, but that's something you can do. Carpooling कर लें. ठीक है, there are pick and drop services like Carvaan, वो यूज कर लें. वर्क फ्रॉम होम कर लें तो पार्किंग सॉल्व हो जाएगा. बट ऑफ कोर्स देयर आर कंपनी पॉलिसीज, देयर आर चैलेंजेस. कुछ लोग होते हैं उनके बिजली का बहुत इश्यू होता है, इंटरनेट का बहुत इश्यू होता है, सो दे कांट वर्क फ्रॉम होम, या घर पे जगह नहीं होती प्रॉपर काम करने की, दे लाइक टू कम टू द ऑफिस. आप डिफरेंट शिफ्ट्स कर सकते हैं. राइट. छोटी शिफ्टें कर लें, बाकी काम घर से कर लें, कुछ काम ऑफिस से कर लें. ठीक है. पार्किंग लिफ्ट आप यूज कर सकते हैं. पार्किंग लिफ्ट मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा आगे जाके. ठीक है. सो आई हैव सीन वन इन लाहौर आल्सो, पार्किंग लिफ्ट व्हिच इज फैंटास्टिक. हो सकता है आप लोगों ने कुछ नहीं देखी हो. तो नियर बाय स्कूल या स्पोर्ट्स क्लब या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पार्किंग स्पेस हो या एम्प्टी प्लॉट हो, वहाँ पार्किंग कर लें, वहाँ उनको रेंट पे कर दें और शटल यूज कर लें, ऑफिस की शटल. ठीक है. रोटेशन प्लान यूज कर लें, सो पीपल ओनली वर्क फ्रॉम द ऑफिस अ फ्यू डेज, सो पार्किंग थोड़ा सा कम हो जाएगा. सो दीज आर थिंग्स. ये तो वो 12 चीजें हैं, या ज्यादा भी हो सकती हैं, जो आप 3-4 लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो आप ले आएंगे ये आइडियाज. राइट. हम एक पोल करना चाह रहे हैं. ये अगेन असद, अगर ये पोल अगर काइंडली अगर आप उसमें डाल दें चैट में. हम एक पोल करना चाह रहे हैं जिसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई लैटरल, जस्ट 1 लाइनर 2 लाइनर्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एक लैटरल थिंकिंग अप्लाई करके solve this, come up with something better than these 12. Okay. सर लिंक जो है वो चैट में दे दिया.
Awesome. I don't see the link. Asad, where have you posted the link? One to one तो नहीं दे दिया? Mohsin, just right after. Mohsin, just after your post. फिर से दे दें प्लीज. हाँ. मैं फिर से दोबारा दे. कर देना. I don't think anybody can see it. Karishma, वो असल में I think वो कामिल का एक कमेंट आया ना, वो स्क्रॉल अप हो गया. Okay. Can you see it now? Yes. Okay. Thank you. ऐसा जब आपके पास तकरीबन 15 रिस्पॉन्सेज आ जाए ना, तो फिर आप स्क्रीन शेयर नहीं करिएगा, मैं आपको बताऊंगा. बी रेडी टू शो दोज, लेकिन आई वुड देन बिफोर वी सी पीपल्स पॉइंट, मैं थोड़े से अपने और दिखाऊंगा. एंड देन असद आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन. ओके. Okay. एंड देन विल सी के जो मैंने दिए हैं उससे भी बेहतर इंशाल्लाह लोग देंगे. तो वी विल सी के इफ पीपल कैन कम अप विद अ बेटर वन. Just get some water. जी असद, जवाब आ गए? सर अब तक हमारे पास ये 13 रिस्पॉन्स हो गए. सर 11 रिस्पॉन्स हुए हैं. अच्छा, 11. So people are being shy. Okay, now So we'll just give 2 more minutes. Yeah. Okay. So now we have 13 responses.
ओके जी सर। असद, हाँ जी रेडी? सर, बिल्कुल हमारे पास जी सर 18 रिस्पॉन्सेज हो गए। 18, wow, that's nice. Okay, I will share my list, some examples. Okay, so this is slightly different. मैं थोड़ा सा explain भी कर देता हूँ quickly, and then असद फिर आप screen share करके दिखा दीजिएगा कि लोगों ने क्या लिखा है. So आप लोगों को याद होगा ड्राइव इन, स्पेशली जो थोड़े से वो है, अभी तो इतना पॉपुलर नहीं है, एक जमाना होता था कि आप मूवी देखने जाते थे ड्राइव इन, राइट? तो एंड यू यूज्ड टू सिट इन योर कार, एंड जिस तरह आप पूरा थिएटर की कॉस्ट आपने नहीं करनी है, ओपन एयर होता था और उन्होंने स्पीकर्स लगाए हुए होते थे पार्किंग पे ना, डिफरेंट पार्किंग्स बनाई हुई होती थी और उसमें स्पीकर्स लगे होते थे, तो आपको साउंड अपने गाड़ी में आ जाता था एंड आप मूवी बड़े से स्क्रीन पे देखते थे. सो व्हाट इफ हम कहें कि भाई आप ओपन एक स्पेस ले लें जहां आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लें कि जो लोग आपके पास बाइक पे आ रहे हैं और दूसरी ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं और मीटिंग्स करना चाह रहे हैं, तो मीटिंग रूम्स बना लिए, थोड़े से क्यूबिकल बना लिए, एंड अराउंड दैट होल प्लेस आपने छोटा सा एरिया बिल्ट एरिया है और उसके गिर्द आपके पास आपने वो कर लिया है, कार पार्क आपने बना लिया है. सो कार पार्क में बेसिकली एनीबडी हुज लाइक, जिस तरह आप अपने क्यूबिकल में जाते हैं तो rather than going to your cubicle you go back to your car. तो आप मीटिंग में गए और फिर वापस गाड़ी में आ गए. Obviously there are things कि भाई फ्यूल है, एसी चलेगा, whatever, climate change के बड़े वो है, but it's just to generate ideas. And idea ये है कि you then mix and match certain ideas to come up with a better idea, right? But this is like a this is a provocation, right? Use cars as cubicles, then offer free rides to neighbors. अच्छा, neighbors खफा हो जाते हैं, तो आपने कहा कि भाई नेबर्स को आपने एक ऐप बना दी, नेबर्स को ऐप दे दी और आपने कहा कि देखिए हमारे ये एम्प्लॉयज जो हैं ये इस वक्त इस एरिया में जाएंगे, तो वी कैन गिव यू ड्रॉप सर्विसेज. नेबर्स को फ्री ड्रॉप सर्विसेज आपने ऑफर कर दी. तो वी पार्क कार्स आउटसाइड योर हाउस, लेकिन वी आर ऑफरिंग यू दीज फ्री सर्विसेज और हमारा कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है. हमारा बंदा शाम को 8 बजे अपनी गाड़ी में उस एरिया में जाएगा, आपको ड्रॉप कर देगा, राइट? फिर हाँ, वापसी में उनको करीम से आना पड़ेगा. ओके, अच्छा, वैले पार्किंग है. सो अगेन यू से कि भाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन, आई एग्री. इसको थोड़ा मिक्स एंड मैच आप जब करेंगे तो परफेक्ट बनेगा. तो अगेन आपने इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग की 1 घंटा, कुछ आइडियाज ले आए, फिर आपने लैटरल थिंकिंग की, कुछ और आइडियाज ले आए, फिर आपने 1 घंटा और आपने बैठ के उसको सॉल्व किया, right? But if you solve the parking problem near your office, that's a big problem. And अगर आपको 3 घंटे, एक दफा मैनेजमेंट टीम 5-7 लोग बैठ गए और आपको 3 घंटे लगा कि आप सॉल्व कर लेते हैं, nothing like it, right? It's a cheaper way. Okay? वैले पार्किंग कर सकते हैं, नेबर्स को अलाउ करते हैं गाड़ियां बोरो करना आपकी, राइट? अच्छा, नेबर्स के को एनकरेज करें कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करें एंड यू ट्राई टू हायर. अगर 19-20 है, 18-20 है, फिर भी आप हायर कर लें नेबर के कैंडिडेट्स को, ठीक है? अच्छा, हो सकता है आपको इवेंट्स करें नेबर्स के लिए, कि आपने एक म्यूजिकल इवनिंग रख दी नेबर्स के लिए, ठीक है? बेसिकली कीपिंग द नेबर्स हैप्पी, राइट? बिकॉज आप उनके घर के पास पार्किंग कर रहे हैं. अच्छा, फिर आप अपनी स्पेस भी कम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप मोटरसाइकिल, जैसे आपने पहले भी लिखा था कि आप गाड़ी मत लाएं, मोटरसाइकिल ले आएं. या आप ये करें कि आप अगर कंपनी की गाड़ियां दे रहे हैं तो आप उसको रिक्शा आप बेशक ना दें, लेकिन आप एक स्टैंडर्डाइज एक फिगर आउट कर लें कि आपके पास इस वक्त जैसे 5 गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो आप उसको 8 कैसे बनाएंगे. तो फिगर आउट कि आप अगर आप गाड़ियां दे रहे हैं एज ए कंपनी, तो आप एक पर्टिकुलर टाइप की गाड़ियां दे रहे हैं ताकि आपकी पार्किंग सॉल्व हो जाए. फिर I'm here, create a very small office the size of meeting rooms across the city to save time and solve car parking. So आपने basically अपने ऑफिस को जैसे वर्क फ्रॉम होम है उसी की एक वेरिएशन कर दी आपने, कि आपने एक पॉकेट्स बना दी 5-5 लोगों के काम करने की, और वो डिफरेंट एरियाज में लोगों, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ करीब रहते हैं, उनके पास वहाँ आपने लोकेशंस बना दी. सो पीपल आर स्टिल कोलैबोरेटिंग, दे आर स्टिल वर्किंग टुगेदर, बट दे आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम and they don't have to come to the head office, right? तो ये ऑलरेडी आप देखते ही हैं कि लोगों ने ब्रांचेस बनाई हुई हैं.
ठीक है, encourage people to rent places very near the office, make it a walking distance. So आप ये भी पॉलिसी कर सकते हैं कि जी आपके ऑफिस के एरिया में अगर करीब में अगर वो रेंटल फैसिलिटीज हैं तो आप लोगों को encourage करें कि भाई आप हमारे घर ऑफिस के पास ही रहें। आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि जी ठीक है, कोई भी कार पूलिंग सर्विस चलानी है तो वो हमारे ऑफिस में तो 20 लोग होते हैं, तो हम कार पूल कैसे करें। तो आप 4-5 ऑफिसेस, सॉफ्टवेयर हाउसेस या कोई भी कंपनी से आप कोलैबोरेट कर लें कि भाई हम ये एक पूल ऑफ 200 पीपल बना लिया है हमने और हम इन 200 में कार पूलिंग करेंगे, तो वो जरा पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा कि जो लियारी से आ रहा है, कोई मलिक कैंट से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, शाह फैसल कॉलोनी से आ रहा है। सो इट्स इजियर टू कार पूल, राइट। तो आपने ग्रुप बना दिया, कंपनी पार्किंग ओनली ऑन रेंट बेसिस। अच्छा, दिस इज द लास्ट वन। इसमें आप ये कह रहे हैं कि टेक कार एंड सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई मेरे कंपनी के पास 5 पार्किंग स्पेसेस हैं या 7 पार्किंग स्पेसेस हैं, राइट, दैट्स इट। तो आपने 5 या 7 गाड़ियां रेंट किया और ये आपको उसको 2 गाड़ियों के साथ टेस्ट भी कर सकते हैं। यू डोंट, इट्स एन इजी वे टू टेस्ट। आपने रेंट करके कर ली। आइडिया ये है कि आपने 7 गाड़ियां ले ली और आपने कहा कि ठीक है ये चाबियां हैं, और आपने एक सिस्टम, अच्छा इंटेलिजेंट सिस्टम बना दिया कि उसमें ट्रैकिंग डिवाइस भी है। तो आप कहते हैं एम्प्लॉयज को, आप कह रहे हैं आप गाड़ी मतलब आप ला ही नहीं सकते अपनी गाड़ी, आप किसी और तरीके से आए, आप बाइक पे आए, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं कि आप ऑफिस की गाड़ी अगर अवेलेबल है इन 7 में से, तो आप जब जा रहे हैं तो आप इसको लेके जाएं और आप रेंट पे कर लें। तो उसमें होगा ये कि आप एनकरेज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कि अब कार पूलिंग खुद ही से हो जाएगी ना, कि अगर आपको 500 रुपये या 300 रुपये रेंट देना है और आप शाम को गाड़ी अपने घर पे खड़ी करेंगे और सुबह में उसी गाड़ी में वापस आ जाएंगे। So you can build a system where these 7 cars are being used by employees, first come first serve basis पे, and then उसकी एक प्राइस है। So people will be encouraged कि आप उसकी डेली रेंट है ना, तो आप लोग encourage हो रहे हैं कि वो गाड़ियों को कॉलीज के साथ मिल के यूज करें, राइट। अकेले महंगा पड़ जाएगा, लेकिन मैंने एक थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन की थी तो ये करीम से सस्ता पड़ेगा। So if somebody is coming with करीम सुबह शाम, तो उनको इससे सस्ता पड़ जाएगा कि ऑफिस की ही पूलिंग सिस्टम एक चल पड़ेगा। सो एनीवे, ओवर टू यू असद। असद आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं? I think Asad disconnect हो गए हैं मेरे ख्याल में. His video is also not working. तो हम लोगों से कह लेते जिन्होंने डाले थे, if somebody feels के जो मैंने अभी बताए हैं इनसे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है, स्पेशली somebody really and be confident, you know, don't be shy. जरूरी नहीं कि इतना अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि मैनेज आइडिया अच्छे हैं तो प्रॉब्ली आपका आइडिया अच्छा ही होगा, राइट। So just share that. Just raise your hand and I'll, yeah, Kamil? Yeah, we are facing this problem nowadays, even in our living hood and offices as well. So one solution that we got, that people who have, you know, small cars like Alto, Mehran, and the parking space it's just like to accommodate 2 cars, so that give you more slots. And like in office parking, if you can, you know, park parallel to small cars, that give you one excess space to one you know, big car. This is one of the thing. And one thing, if you can, like if you are using soil airlift or office vans, and encourage people to use office you know, vans. So, and if you know, coming back on cars that are not legitimate to those people, so that can give you the more parking space to those people who cannot, you know, afford Kareems and soil, and or maybe maybe, you know, keeping cars for them is legitimate for them to come office on the cars. आपने बेसिकली 2 आइडियाज जो हमने अलग अलग डिस्कस किए थे, आपने उनको मर्ज कर दिया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, इसको ऊपर से पढ़ते थोड़ा सा अगर बड़ा कर लें असद प्लीज।
ठीक है, ये तो टेस्ट लिंक तो मैंने डाल दिया था। अच्छा, सी इफ टू स्मॉल कार्स, अच्छा ये तो नहीं कहा था, कार इन वन पार्किंग टू गेट मोर स्लॉट्स। ठीक है, यूज बाइक साइकिल इंस्टेड ऑफ कार, ये तो हम वी ऑलरेडी मेंशन दैट कि बाइक कर लें, एंड साइकिल अच्छा है, साइकिल इज मोर क्लीनर। अच्छा, लीव होम टू ऑफिस अर्ली फॉर कार पार्किंग स्पेस, अच्छा ठीक है, बट हाँ वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके अपने कॉलीग्स सफर करेंगे ना तो सॉल्व आपके लिए तो हो गया, लेकिन कंपनी के लिए नहीं हुआ, बट स्टिल या इट्स अ गुड आइडिया। बाइसिकल हो गया। अच्छा, यूज द ऑफिस टू न्यू लोकेशन, हैव होम्स देयर टू। हाँ देखिए, ये तो लोगों ने सॉल्व किया है। somebody was telling me कि वो पता नहीं चाइना में किसी रीजन में जा रहे थे, तो he was going by train and it was like a 400-kilometer trip, and he said all across दोनों तरफ फैक्ट्री एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, till between two cities throughout factory or housing complex उन्होंने बनाया था। अच्छा, do not bring car, use public transport। I think we've in a way we've covered this कि जब हमने कहा ना करीम यूज कर ले, बाइक या यूज कर ले, तो उसमें फिर बस और वो भी आ जाते हैं ना, बट या that's an option। Shift the office to another location having ample parking space। अच्छा, this is, इसको मैं थोड़ा सा चैलेंज करूंगा, shift the office to another location having ample parking space, इसको थोड़ा यूज करें, इनको कॉम्बिनेशन में यूज करें। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज आस्किंग फॉर मोर मनी, एक्चुअली आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड दिस, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है ना, तो ये मुझे खर्चे वाली चीज लग रही है कि जी बड़ी पार्किंग स्पेस होना चाहिए आइडियली इंशाल्लाह, लेकिन यूजुअली योर वॉट एवर वी टॉक अबाउट इट्स मनी, बजट कंस्ट्रेंट भी होता है और टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। Doing work near your house after use car, give rent। I love this. I love this. Okay, what we're saying here, doing work near the house and after use car rent। So ये idea को हम use कर सकते हैं to the last one that I gave, कि अगर आप ऑफिस की 7 गाड़ियां खरीद लेते हैं और आप कहते हैं लोगों से कि भाई आप घर ले जाएं वापस सुबह ले आए, ठीक है, तो दिन भर क्या करेगी वो गाड़ी, और वो जगह भी ले रही है एक्चुअली और महंगी भी पड़ रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कुछ ड्राइवर्स रख लिया और आपने करीम में जैसे चला दी, तो आपने जब वो बंदा, लेट से हम 11 to 8 काम करते हैं, तो 11 to 8 के दरमियान में वो करीम में अवेलेबल होगी गाड़ी। ब्रिलियंट, आई लव दिस। ठीक है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, आपने एक खर्चा कर लिया, 7 गाड़ी आपको खरीदनी पड़ गई, आप सेकेंड हैंड ले लें, लेकिन देन आपको मंथली आप कमा रहे हैं, एम्प्लॉय से भी कमा रहे हैं, एम्प्लॉय का भी फायदा हो रहा है और आप भी कमा रहे हैं, करीम पे चला रहे हैं आप। तो आपको इन अ वे आपने एम्प्लॉय का भी फायदा कर दिया, पार्किंग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, रेंट कमा लिया, और मे बी आफ्टर 1 year or 2 years आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें उस चीज से। प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो एम्प्लॉय फंड में डाल दो पैसे, एम्प्लॉय के लिए सब्सिडाइज कर दें, और ओके, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। ओके, सो अच्छा, बाय एन इलेक्ट्रिक कार एंड लीव इट फॉर चार्जिंग फॉर नियरबाय गार्डन। अच्छा, I will take it on rent for parking my car। हाँ, that's a good idea कि आप रेंट पे कर दें। हमने थोड़ा सा इसका इशारा किया था कि आपके ऑफिस के पास अगर कोई स्पेस है तो उसको रेंट कर लें और फिर वहाँ शटल चला लें, राइट। अच्छा, आई थिंक वी शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, वी शुड थिंक ऑफ अदर, बिल्कुल अदर आइडियाज। वी विल ट्राई टू बाय अ स्मॉलर कार, पिकअप सर्विस लोकेशन, ये कारवान जैसे है यूज कर लें। Live near the job location, brilliant, can avail nearby parking, valet service, they can come and take your car and when required drop your car। Wow, that's a new one, valet service किस तरह से आप, parking meters, paid parking। अच्छा, we should drive office as they forced to work from home because of can share rented space with neighbor, after work we can use our car for rent purpose, so we need to park at your home, give car for wedding purpose। Just speak to your neighbors about it, especially those who don't have car vehicles। Nice, use third party service, so rent करें लेकिन neighbors को priority दे दें। Use third party services, it's a business opportunity to build a parking plaza। Yeah, love it, thank you for contributing। I will take the screen share, Asad। Okay, sir।
Okay, so we should finish in the next 50. नहीं, थोड़ा सा time लगेगा. So I think people. So we are now into the last part. So it's now very obvious कि हम systems thinking, counterintuitive thinking इस तरफ नहीं जा सकेंगे. We'll need to do that some other time. But so this is, in any case, this is a teaser session, right? This is basically hopefully get professional plan a bigger session जिसके अंदर कुछ contribution भी करनी पड़ेगी. तो वो इंशाल्लाह उसमें we can cover the systems thinking, counterintuitive thinking. हम अभी तो ये next half an hour में हम will just be able to finish 6 thinking hats. सर एक जो क्वेश्चन ले लें अगर आपकी परमिशन हो तो. हाँ आप ही पढ़ दें. हाँ प्लीज. जी जी. Sir, Kamil Mushtaq is asking, your project plan tells you that how much parallelism you can keep during execution. That tells you max headcount in your project team. That was not a question, actually. Comment. There was a question from Mohsen, so I replied against his question. हाँ, sorry, first comment. ठीक है. हाँ, नहीं, that's a good comment. अच्छा जी. 6 thinking hats में हम आ जाते हैं. So what are these hats? आइडिया ये है कि आप जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, sometimes you've heard this comment, right? When people come out and say, oh, the meeting was all over the place. You know, people were pulling so people come whenever there's a problem to solve. People come with their ideas, and sometimes they have some baggage. कुछ उनके अपने एंगल भी होता है, right? There are humans. तो उसके अंदर basically ये जो 6 thinking hats है, ये एडवर्ड डी बोनो ने बहुत काम किया है. लेकिन इस वक्त जितना अगर आप मैंने देखा है कि ऑनलाइन आप चेक करें, somehow this is the most popular. 6 thinking hats एडवर्ड डी बोनो की सबसे पॉपुलर चीज चल रही है. And he's very old now, so he's not very active, but ये उनकी एक लेगेसी बन गई है. हालांकि he's done a lot more. तो इसमें एक अप्रोच ये है कि आपका हम थोड़ा सा आप हैट्स को यूज करते हैं. सो एवरीबडी आप एक मीटिंग में बैठे हैं 7-8 लोग हैं, सो एवरीबडी वेयर्स द सेम कलर्ड हैट एट द सेम टाइम. सो आपको हैट्स रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू अनाउंस कि जी इस वक्त वी आर ऑल वेयरिंग द ब्लू हैट और वी आर ऑल वेयरिंग द व्हाइट हैट. ठीक है. So, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, इस तरह लीडरशिप के लिए जो है, you need to be very, very good at thinking and solving problems. अच्छा, इसमें थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए होगी, right? We cannot think that we are right all the time. So yeah, that's just not true. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Thinking stew. So when you're in a meeting, there's a thinking stew. Some people are suggesting things. Some people are judging. Some people are criticizing. Some people are just providing information. Some people are just being emotional, right? All mixed together. So 6 thinking hats क्या करता है? 6 thinking hats क्या करता है कि वो आपको ना कहता है, okay, रेड हैट है, जैसे अभी हम आगे जाके देखेंगे. रेड हैट इज इमोशनल. सो आपने देखा होगा कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जब दे स्टार्ट अ मीटिंग, वो कहते हैं अच्छा, you know, let's get
this out of the way. मतलब किसी आपको पता है कि साहब का कोई खुदा न खास्ता रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ था, और आपको पता है उस मीटिंग में वो चीज सबसे पहले आएगी, राइट? तो वो कहता है ठीक है यार आप अपना मसला बता दो, लेट्स गेट आउट ऑफ द वे, गेट इट आउट ऑफ द वे, राइट? सो इट्स वेरी गुड. सो अभी हम यहाँ उस सीक्वेंस में नहीं जाएंगे, लेकिन आई वुड से कि जब आप 6 थिंकिंग हैट्स का सेशन रन करें एंड आप डिटेल्स, you can get more details in our inshallah next session, or you can get more details from Edward de Bono's books, और YouTube में भी आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी. तो 6 थिंकिंग हैट जब आप रन कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो मैंने कल्चर देखा है, स्टार्ट विद द रेड हैट. सो रेड हैट इज दैट यू कैन बी इमोशनल अबाउट इट, यू कैन, आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, और यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. सो यू से, आप आए मीटिंग में और आप कहें कि मुझे ये आइडिया, आपने जाहिर बात है लेट्स से कि कोई एजेंडा था और आपको एक आइडिया पहले से शेयर हुआ है, एंड देन वो वोटिंग करने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई है. यू कैन कम टू दैट मीटिंग एंड यू नो एवरीबडी स्टार्ट्स विद द रेड हैट. सो एवरीबडी जिसको ना they cannot explain themselves, their intuition is telling them or their sixth sense is telling them it's a bad idea, but they can't explain themselves. Red hat mein you can do that. You can say I hate this idea, and you don't have to explain yourself. So everybody just hears you out. You don't have to explain yourself. So it's very good because it's आप एक भड़ास निकल जाती है. So कहने को ये बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन it's very powerful. Okay. we'll थोड़ा सा हम टाइम कंस्ट्रेंट है, we'll just dive in. गाइडिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. अच्छा, जो 4th पॉइंट है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जब आप रन करें 6 थिंकिंग हैट्स, तो उसमें कोशिश करें कि ब्लैक हैट एक आपको मौका मिलेगा जिसके अंदर आप डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, राइट? तो जो हैट आपने पहनी हुई है, स्टिक टू दैट. ओके. एंड नो आइडिया इज अ बैड आइडिया. दैट्स द रूल. No idea is a bad idea, because ultimately होगा ये कि some bad ideas can get together and become a very good idea. तो हम नहीं कह रहे थे कि पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहे हैं, you don't have to take a straight line, you can take a detour and get there, right? You can take a different path, a longer path seemingly, right? तो ये चीज आप कर सकते हैं. No idea is a bad idea. So a few bad ideas can actually get together and become a very good idea. अच्छा, begin with blue कोई जरूरत नहीं है. मैं तो कहता हूँ स्टार्ट विद रेड. ठीक है, एंड यू कैन फिगर इट आउट योर ओन कलर्स. ओके, आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं. ब्लू हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है. ठीक है. एंड रैंडम वर्ड टेक्निक में हम अगेन नहीं जाएंगे. रैंडम वर्ड टेक्निक एक और टेक्निक है फॉर लैटरल थिंकिंग, तो वो हम इंशाल्लाह कभी और करेंगे. Okay, so blue hat is controlling the process. I'll let you read. So blue hat is used by the moderator. So when everybody is wearing the blue hat, it's usually the moderator who's doing the talking. And blue hat, अच्छे जो moderators होते हैं, again they can, अगर team practice नहीं है, तो you might want कि आप blue hat से start करें और blue hat से end करें. So do the blue hat and then come to the red hat. Or some people might decide to do the blue hat and then come to the white hat, which is facts. आप सारा facts collect कर लें. What do we know about the problem? You say we have 30 employees, 15 employees bring cars, we have space for 7 cars. How do we solve the problem? So you define the problem. ठीक है? I'll skip a bit. मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ because these are all very detailed topics. So red hat जो है again your emotional, intuitive. आप अपनी feelings red hat जब आप everybody is wearing the red hat, you can explain your feelings. Yeah, I feel that neighborhood में office नहीं होना चाहिए. ठीक है, but फिर कहाँ होना चाहिए? Fancy building में होना चाहिए. अच्छा, fancy building में होना चाहिए तो are you willing to take a 10% pay cut to move to a fancy building because money तो limited है. So you know it's
usually what mistakes we do is कि हम एक एंगल से बात करते हैं, हम दूसरा एंगल नहीं देखते, राइट? तो पैसा कहाँ से आएगा फैंसी बिल्डिंग में जाने के लिए, राइट? पैसा हम ही देंगे ना. This we are all together in it. Focus on feelings. ठीक है, intuition, feelings, hunches. Red hat is intuition. Okay. Yellow hat is different from green hat. हम green hat पे आएंगे. Green hat is the lateral thinking hat. Yellow hat is different. So yellow hat is something जब आप कहते हैं कि अच्छा, जो मैंने जिया चिश्ती की बात की थी कि he said, you know, किसी ने तो सॉल्व किया होगा, somebody must be doing it, right? तो yellow hat में आप ये कहते हैं, you ask yourself कि यार the sun is shining, everything is looking up, you're in a very good mood. अच्छा, कोशिश करें मीटिंग्स के अंदर, स्पेशली यंग लोग तो कोशिश कर सकते हैं कि have donuts, have मीठी चीजें रखें, या डोनट्स नहीं रखें, फ्रूट रख लें, that's healthy है, right? फ्रूट रखें. इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है ना, उसके अंदर शुगर की चीजें होनी चाहिए, because you need to be in a good mood. And yellow hat and green hat, इसमें आप खेलेंगे, otherwise you'll, you know, you're not learning anything from this session, right? Because yellow hat is something कि ये positive angle से आप approach करें, हर चीज में एक positive angle ढूंढें आप, right? Focus on the benefits. So अगर रेजिडेंशियल एरिया में ऑफिस है, so what are the benefits, right? जिस तरह हमारा ऑफिस है, we try to हम शारे फैसल पे नहीं जाते हैं, हम आया चुंदरीगढ़ पे नहीं जाते, बिकॉज हम कहते हैं कि भाई हमारे ज्यादातर लोग नीपा के करीब रहते हैं, तो हम नीपा पे ऑफिस ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? So there is a benefit. People don't have to travel 1 hour to get to the office. But then there are other challenges. Okay, green hat. So we've talked a lot about green hat today, first session. Green hat is all about lateral thinking. Okay, so it's all about creative thinking, alternate ways, breaking the pattern. अगर ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप कहते हैं कि जी अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. That's a good way to get out of your pattern, right? Because sometimes हमने, आपने वो ऑरेंज जूस वाली एग्जांपल आपको याद होगी कि हमने अज्यूम किया था कि हम ग्लास उठा के वापस नहीं रख सकते, right? So to get out of that, break your assumptions, right? So sometimes if you say, अच्छा, if you have a lot of money, what do we do? If you have a lot of time, what do we do? राइट? आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कितने लोगों ने यूनिवर्सल मशीन पढ़ी. ठीक है, जिन्होंने पढ़ी थी, इफ यू आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि यूनिवर्सल मशीन में एक खासियत थी कि उसके पास अनलिमिटेड मेमोरी होती थी, तो फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सप्रेशन सॉल्व करती थी. यस, तो जस्ट बिकॉज उन्होंने एक assumption तोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं अनलिमिटेड मेमोरी है, so then they proved कि universal machine can solve any problem in the world. And now we know that probably led to AI, because हमें उस वक्त तो नहीं पता था, मैं पढ़ रहा था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कि एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा का कोड तोड़ा था. So now we know कि by breaking a pattern, you know, suddenly एक assumption तोड़ दिया आपने कहा कि unlimited memory है, so then you solve it. अच्छा, हम इसमें नहीं जाएंगे. Sometimes just using word of the day, use it to break your pattern. So out of those, आपने वो 5 भी कर लिए जो हमने आपको सिखाए. You can use random word of the day. Just Google word of the day and then pick a word and then use the meaning of that word to solve the problem. So there are many ways. This is like a big topic, right? Traffic problem. I'll just give you a moment to think about this. We won't get into a detailed poll on this. मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि I'll show you some pictures at the end.
आई अपोलोजाइज, वो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जस्ट गिव्स यू एन आइडिया। और राइट साइड पे आप देखें कि ड्रोन्स हो गया है। फिर जापान ने तो ये सॉल्व भी कर लिया, जो बहुत बड़े शहर है जिनमें आने जाने में लोगों को 2-2 घंटे 4-4 घंटे पे लग जाते हैं वन वे, तो ऑफिस आने में तो उन्होंने ये भी कर दिया कि उन्होंने फिर वर्क फ्रॉम द ट्रेन भी कर दिया है कि भाई आप ऑफिस आते हुए 4 घंटे लग रहे हैं तो आप 2 घंटे और ट्रेन से काम कर लें, राइट। और उनकी ट्रेन बहुत अच्छी होती है बाहर तो। और जापान में तो ये भी कर दिया है कि पॉपुलर एरियाज में स्लीपिंग क्यूबिकल्स बना दिए हैं। सो होटल्स हैं, जैसे बहुत ही सस्ते होटल्स हैं जो जिसमें नहाने की फैसिलिटी है, चेंजिंग फैसिलिटी, और क्यूबिकल्स हैं, छोटे छोटे क्यूबिकल्स हैं जहां आप जाके चुपचाप सो जाएं। तो आप ऑफिस से निकले, आप घर मत जाएं, आप ऑफिस से निकले, घूमे फिरे, खाए पिए, दोस्तों से गप्पे लगाएं, और फिर जाके क्यूबिकल में सो जाएं, सुबह उसी क्यूबिकल से ऑफिस आ जाएं पैदल चल के, यू नो। स्लीपिंग क्यूबिकल्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है, मेटा अब आ गया है, जैसे आप फेसबुक में आपने देखा है मेटा है। सेकंड लाइफ आप लोगों ने, कुछ लोगों ने यूज किया होगा, बहुत पुराना है सेकंड लाइफ तो इफ यू आर इन अ वर्चुअल स्पेस, लेट्स से वी आर ऑल इन अ ट्रेनिंग रूम एंड आई एम स्टैंडिंग एंड टॉकिंग एंड यू गाइस आर सिटिंग और यू आर आल्सो स्टैंडिंग एंड वी कैन सी ईच अदर in a meta space, right, or in a second life space. So you don't have to come, right, and this session could be much more fun, right. It's just me talking and you getting bored. मोनोरेल है, ऑटो रिक्शा है, राइट। अच्छा, मुझे बहुत अजीब लगता है, एंड यू गाइस कैन सेपरेटली मैसेज मी इफ यू हैव अ बेटर आइडिया, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। वी आर अ पुअर कंट्री, वी आर स्पेंडिंग $15 billion, हार्ड अर्न्ड $15 billion ऑन फ्यूल, ठीक है। फ्यूल बिजली में भी काम आता है, कमर्शियल इंडस्ट्री में भी काम आता है, आई गेट इट, लेकिन आई डोंट नो इफ समबडी नोज, प्लीज टेल मी कि इस वक्त कमर्शियल, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं भी तो फ्यूल खर्च कर रहा हूँ। अगर मैं रिक्शा चलाता, मैं रिक्शा में ऑफिस जाता खुद चला के, मतलब मैं गाड़ी खरीदने के बजाय मैं रिक्शा ले लेता, तो रिक्शा तो इलेक्ट्रिक भी बन सकता है, एक तो बहुत लाइट वेट होता है, दूसरा है कि मुझे अगर उसमें फ्यूल भी डालना है तो बहुत कम फ्यूल डालना है। तो why are we buying cars, why are we importing cars, why just don't slowly shift to rickshaws, right? It's safer than a motorbike, right? और एम्बुलेंस अलग आप कर लें, बसेस आप कर लें, लेकिन आप नॉर्मल लोगों के लिए जो अकेले ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं, दे शुड जस्ट ड्राइव रिक्शास, राइट। आपके मुल्क का भी फायदा है, आपका भी फायदा है, खर्चा भी कम है। सो एनीवे, दैट्स समथिंग दैट्स बॉदरिंग मी। अच्छा जी, ब्लैक हैट पे आप आ जाए। अच्छा, दिस इज समथिंग जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑल एक्सपर्ट्स एट ब्लैक हैट, ओके। ब्लैक हैट is something जो आप negative, judgmental, you know, अच्छा, why it won't work। तो हम लोगों का ब्रेन somehow ट्रेन हो गया है कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं हम पहले ये सोचते हैं कि why it won't work। अनफॉर्चुनेटली उससे होता ये है कि हम में जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, हम उनको थका के, हरा के चुप कर देते हैं। so they stop giving ideas, right? so I would request कि इस पूरे सेशन का अगर एक टेक अवे है कि ब्लैक हैट थिंकिंग सिर्फ तब करें जब आप येलो हैट और ग्रीन हैट कर चुके। वंस यू डन विद येलो हैट, ग्रीन हैट, ओनली देन डू ब्लैक हैट, ओके। So creative thinking will help me. I feel that it helps me be more productive, be happier, you know, have shorter meetings, less conflict. Conflict is not a bad thing as long as we respect each other, but you know, खामख़ा negative conflict नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। Work better with teammates, colleagues, reduce overtime, reduce stress. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी इस पोल पे जाएं, असद प्लीज इस पोल में आप जाके कर दें, and select any 3। I think असद ने 3 ही डाला है। So just इस पोल पे वो चैट में डाल देंगे, तो आप you guys go in and then I'll hand over the screen share to Asad and then you just। जी मैंने चैट में सर लिंक शेयर कर दिया। Yeah। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 3 जो है ना बेस्ट जो आंसर आपको लगे आपने वो सिलेक्ट करना है। थैंक यू। सर कितने आंसर्स पे वापसी आना है? Let's hope कि 15 लोग कर लें। Okay। We have only one person who's dropped।
32 हैं अभी कॉल पे। Okay. Yes, sir. Sir, now we have 16 responses and 17 now. अच्छा, उसमें अदर शायद मिस हो गया है, बट एनीवे उसके कॉम्बिनेशन इज गुड इनफ आई थिंक। अदर का मैंने इसलिए डाला था कि अगर कोई अदर कहते हैं ना तो हम उनसे पूछते, खैर वो हम अभी भी पूछ लेंगे कि किसी का और समथिंग बहुत ही उनके पास कोई ऐसी इंसाइट है जिससे फील कि अच्छा दिस इज समथिंग दे वांट टू डू। वैसे भी हमने अदर में वो टेक्स्ट तो लिया नहीं है, सो दैट्स फाइन। No, sir, we have 23 responses. ओके, तो आप फिर स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज। Okay, okay, sir. आई थिंक थोड़ा सा उसको छोटा कर लें अपने स्क्रीन को ना, आई थिंक वो जो ब्लू वाला है ना वो समझ में नहीं आ रहा है वो कौन सा है, जो राइट मोस्ट बार है, व्हाट इज दैट? सर ये जो है स्क्रीन छोटी नहीं होगी, लेकिन सर यहाँ पर ये मूव हो जाएगा ओके, कि जो रिड्यूस स्ट्रेस। सर्कल ओके वाला है रिड्यूस ओवर टाइम और इस तरीके से। Okay, so a lot of people feel that it will help reduce stress, and that's true for me. मुझे कोई भी difficult situation आती है तो you know it helps me. I'll show you my favorite truck. आप लोगों में से जिसने भी मुझसे ट्रेनिंग ली है कभी भी, वो एक ट्रक में हमेशा दिखाता हूँ और वो मेरे डेस्कटॉप पे भी रहती है। तो I'll tell you why it's on my desktop. So lateral thinking does help me reduce stress, my own stress. Awesome. Okay, so I think I'll take the screen share back. Some images for you to think about. मैंने आपसे एक कार लिफ्ट की बात की थी। If you look at this, this is a real solution. ठीक है, इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए, लेकिन it can park, let's say, एक पूरी तस्वीर नहीं है, आराम से 10-15 गाड़ियां आप खड़ी कर सकते हैं, एंड देखा जाए तो 3-4 गाड़ियों की जगह में आप 10-15 गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। Right? This is a car lift. This is a solution. ठीक है, and this is like easy to install near your office. लेकिन आपको शायद बराबर वाले, अगर इसमें भी आपको एक बड़ी एक स्पेस जरूर चाहिए होगी, लेकिन लोगों के पास होती है अक्सर स्पेस, वो खत्म हो जाती है। जैसे हम अगेन बहुत सी मैंने ऐसी जगहों पे काम किया जहाँ इवन आगा खान मैंने देखा कि वहाँ स्पेस है बहुत सारी, लेकिन वो जगह खत्म हो जाती है पार्किंग की। ओके, फिर ट्रांसपोर्टेशन में लोग ये कर सकते हैं कि तेरा अगर आप ड्रोन नहीं यूज कर रहे तो आप इस किस्म की ना छोटी मोनोरेल टाइप की, ये मिनी मोनोरेल है। You can use rickshaw. This is a mini rickshaw which can probably even fly, so it can act like a drone, or it can fly, and it can also be on the road. ठीक है, this is also like it's a motorcycle but it's safer, right? This is my favorite. ये मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसमें ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिवाय इसके कि आपको थोड़े से ऑफकोर्स बस स्टॉप बनाने होंगे जरा ऊंची जगह पे, लेकिन ये एक बस ही है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चेंज करना। आप करते ही हैं कि आप, और ये रियल है, मतलब ये इम्प्लीमेंटेड है, एक जगह पे इन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है कि आप लेन्स के अंदर चला सकते हैं और उसकी पटरी बना देते हैं, छोटी सी बिल्कुल पतली सी पटरी बन जाती है, उसमें रोड गाड़ी आपको कोई डिसरप्शन नहीं है, इट्स जस्ट हायर देन कार्स। तो इसके साथ अगर कोई बसेस चल रही हैं और वो चल रही हैं तो वो उसके पीछे पीछे चलती रहें, लेकिन गाड़ियां इसके अंदर से गुजर सकती हैं नीचे से, अनलेस के 2 बसें एक साथ आ जाएं जो यहाँ पाकिस्तान में हो सकता है। लेकिन
एक रास्ता भी खुला है तो वहां से गाड़ियां गुजरती रहेंगी, और ऊपर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे से लोग सफर कर रहे हैं, right? And this is my favorite, and this is the last slide of today's session. Uske baad hum people can drop, and if some people want to share some ideas, then they can share. But this is the last slide of the day, and this is my favorite slide, और ये मेरे desktop पे रहती है. So इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि people can raise their hands, and I would basically like, इसके हम poll नहीं कर रहे. I would just like to ask you कि what do you see, and I know कि some of you who attended my training would know the answer, so वो लोग बेशक contribute ना करें, लेकिन people new to the session, उनको इस वक्त इसमें क्या दिख रहा है? And I want a yellow hat answer, okay? I don't want a black hat answer, okay? So black hat is the negative judgmental answer. Yellow hat is the sun is shining, okay? It's positive. So tell me something positive about this picture. And just raise your hand, and then Asad can request one by one. जी कामिल मुश्ताक साहब. Yeah, I can express there is a will, there is a way. Very nice. True, so true. मोहसिन. जो जगह है वो यानी काफी सारे लोग बैठे हैं काफी आराम से, तो दे हैव मेड स्पेस विद द लगेज टू फिट इन मोर पीपल. Yeah, absolutely. ओके, उमर अशरफ. Capacity utilization. True. सर उजैर राशिद said unity, कि यहाँ unity नजर आ रही है. हाँ, because some people have sacrificed, you know, एक बंदा बेचारा नीचे की तरफ बैठा है, precarious बैठा है, तो लोगों ने sacrifice भी किया है और एक दूसरे को prefer किया, और unity में sacrifice करना ही पड़ता है, right? जब आप unity और team building की तरफ जाते हैं तो लोगों को एक दूसरे के लिए sacrifice करना पड़ता है. So they've done that. That's wonderful. That's something that I had not thought about. Okay, शाहरुख परवेज सर. Patience. क्योंकि हर किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया होगा. Yeah, patience. Adjust करना, patience है सबके साथ, मतलब different लोग हैं. True, so true. Wow. Rabis Naqvi said saving fuel. Saving fuel, अच्छा, ठीक है. और तलहा निहाल कह रहे हैं कि expanding the horizon of possibility. Very nice. Okay, मेरा इसमें बस ये the reason I keep it is आपको ना TED Talks मिलेंगी जो I would strongly recommend कि आप देखिएगा on constraints, how constraints help you work better. So हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन there are many times कि constraints आपको आपकी मदद करते हैं rather than कि आपको hurt करें. और हम लोग काफी, और constraints again all the time, no, not enough time, not enough money, right? And then it changes into not enough space and all those related. But if you had unlimited time, it solves a lot of problem. If you have limited money, it solves a lot of problems. But sometimes limited time and limited money helps. For example, इसमें अगर मैं इसके ऊपर मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें तो शायद 40-45 लोग बैठे हुए, ठीक है, ट्रक पे. तो थिंक अबाउट द कॉन्वर्सेशन कि दो लोग गए, ये लोग तो दूर बैठे हुए हैं, दो लोग गए ट्रक ड्राइवर के पास कि यार आप हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाएं प्लीज. और ट्रक ड्राइवर कहता है कि कितने लोग हैं, नहीं, ट्रक ड्राइवर कहता है कि हाँ मैं 30 आदमी ले जा सकता हूँ. तो ये कहते हैं कि यार हमारे साथ मसला ये है कि हम तो 45 लोग हैं. तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि नहीं, मेरे पास तो 30 आदमी की जगह है. तो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो जाने लगते हैं. फिर वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आपको ये भी बताना था कि हमारे पास सामान भी है. तो
यूजुअली क्या होता है, सामान बिकम्स अ कंस्ट्रेंट कि भाई ओ सामान की वजह से जगह कम पड़ जाती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर कहता है अच्छा सामान अगर है ना तो शायद मैं 45 आदमी भी ले जा सकूं, मुझे सामान दिखाएं, राइट, बिकॉज सामान विल हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन टाइप। तो जब उसको सामान दिखाते हैं वो, तो वो कहता है कि हाँ इस सामान के साथ मैं 45 आदमी भी ले जा सकता हूँ। सो सडनली सामान जो एक कंस्ट्रेंट था, that has enabled you to solve a bigger problem. So constraints are, मैंने जो देखा है, constraints are most of the time they are helping you, but unfortunately हम क्योंकि इतने अच्छे नहीं होते lateral thinking में, तो हम उसको use नहीं कर पाते constraint को to help us achieve more, much more. ठीक है, so I'll conclude there, and people can drop, I'll let you go, and अगर कुछ लोग अगले 4-5 मिनट में कुछ comments देना चाह रहे हैं, please keep your comments brief, so they can raise hand, and then Asad can you know and I would say कि अगर if you can share your screen, share your video, that would be even better, because मैं screen share बंद कर रहा हूँ, but yeah, just go ahead. लोग जो है वो वीडियो शेयर करने के वो उस सिचुएशन में शायद नहीं है, छुट्टी का दिन है। Thank you, Shahud. Glad to see you. Okay, I think people have had it. I think they've been at it for 2 hours. So, sir, excuse me. सर एक रिक्वेस्ट थी तमाम पार्टिसिपेंट से कि अगर वो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन कर लें और एक हम स्नैपशॉट ले लें इस मीटिंग का। Oh, okay, that's good idea. एंड सर सेकंड चीज़ ये कि वो लोग जिन्होंने साइन अप नहीं किया था या वो किसी और चैनल से यहाँ पर आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लिंक में जो है मोहसिन ने जो है ना एक चैट में एक लिंक सेंड किया है, तो उसके थ्रू आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, आप साइन अप कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट जब हमारी ट्रेनिंग्स होंगी तो हम उसके लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम पब्लिकली अनाउंस करेंगे, जो भी हम ट्रेनिंग अनाउंस करेंगे, तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू। Thank you. Thank you. And thanks everyone for sharing your video as well. Seems that few people have worked today. Yep. I think we're ready. Good to see you, Fahad. Long time no see. So those people who, yeah, so Asad, you might not know, Fahad used to be in Get Professional and was a force to reckon with. And he's mashallah 6'3" or something, so he's, in any case, he's a big presence. So anyways, I think we can take a photograph before people turn off their video. Yes sir, I have. एक दो snaps ले लें and then let me take one more. Okay. Maybe. Okay, thank you so much. Thanks everyone. See you soon, inshallah. Khud Hafiz. Hafiz. Office.